Elections have come to an end, and the results were out yesterday. West Bengal BJP was taking a landslide. How do you see this? What do you have to say? See, first of all, I would like to thank the electorate of West Bengal for having casted their precious vote in favor of MIM 11 candidates. Unfortunately, our candidates could not win the election, but I am thankful to them for exercising their vote, and especially in Kandy, we have done very well. Our candidate Mujibul Islam has got a good number of votes, and hopefully not from Kandy but from all Malda, Murshidabad onwards, I see a bright future for MIM party, and we'll be working more hard and we'll be rectifying our mistakes and whatever weaknesses have been there, but I'm thankful. The people of West Bengal have given power to the BJP. We have to respect that decision. It is the people's decision. Thirdly, I am of the opinion that I have been consistently saying that these so-called secular parties will not be able to stop BJP. And we have seen in the past, in Delhi, Mr. Kejriwal tried to play footsie with Hindutva. The same was done in Maharashtra by Mr. Uddhav Thackeray's party. And also, to a certain extent, this soft Hindutva was also played by the erstwhile NCP. We have seen the same behavior in West Bengal by Mamata Banerjee, TMC. What the net result is that in Delhi you don't have the Aam Aadmi Party in power, despite adopting a real Hindutva. They have lost elections over there. Mamata Banerjee did the same thing, and also you have seen that she has been in power for last 15 years. And if you go to Malda, Murshidabad, or even if you happen to read the government documents, which clearly show that the most marginalized community in Bengal are the Muslims. And if you see their socio-economic indicators, it clearly shows their marginalization. And if you go to Malda, Murshidabad, you see how in a pathetic conditions the Muslim, especially the Muslim women are living. They're living in abject poverty over there. So this whole creation of Mamata Banerjee as a very liberal, secular leader is not to be seen in West Bengal. And there was huge anti-incumbency against her. And I am of the opinion that I once again reiterate my point that the Muslims should try to create their own independent political leadership. Your vote is getting wasted because you are casting your vote in favor of these so-called secular parties, or not all secular. And they have failed to stop BJP. And if you go back in time, in 1998, the first BJP MP which got elected ever in West Bengal was Mr. Tapan Sikdar. It was supported by TMC. And Mamata Banerjee got the first BJP MP from West Bengal in 1998, in 1999 as well. Then she was part of the Atal Bihari Vajpayee cabinet as a railway minister. She left them, then rejoined them. So, same is the case with Mr. Uddhav Thackeray, same is the case with Aam Aadmi Party, Arvind Kejriwal. So, it is high time that Muslims must get united and create their own political leadership. At least you will have a voice to raise your marginalization. You will have your political representative to talk about injustice. You will have your elected MLAs, MPs, corporators who can work for the development of that respective ward or assembly constituency of the parliament. Reposing faith for so many years
in these secular, so-called secular parties have not given any development, have not ensured or eradicated injustice or discrimination is stopped. And there are many reasons for the TMC loss. And one of the reasons also is an SIR, but there was huge anti-incumbency, there was huge corruption, there was huge exploitation of the Muslim community, so there are various reasons. But anyway, people have given their verdict. We hope that the BJP government would work for every section of society and ensure that this marginalization which is happening to the Muslim community is stopped. People of Kerala have given the judgment. UDF, they have given them confidence, vote and power to UDF. And I am thankful to the Almighty Allah that IUML has got their 22 candidates have been elected as MLAs, and I am sure that under the leadership of Mr. Tangal, IUML will do justice for every marginalized backward section, especially the Muslims. Thirdly, in Assam, people have reposed their faith again in BJP. I have gone to Assam, I have campaigned for AIDF, Mr. Badruddin Ajmal's party, and it is fact that the Hemanta Biswa Sharma had displaced nearly 50,000 Muslims over there, and they have been still able to win elections, even in Assam also. This whole thing, we'll vote for Mr. Gogoi and his party. What is the net result? It is BJP is winning. I mean, had Ajmal Saab got more MLAs, that would have given a stronger voice to nearly 30% of the Muslims of Assam. But anyway, Alhamdulillah, Ajmal Saab and his candidate has won, and I'm sure that they will be doing their utmost best to ensure that this injustice which has happened under the rule of Mr. Hemanta Biswa Sharma will come to an end. Tamil Nadu, it's a completely, people of Tamil Nadu have given their verdict in favor of TBK party. No one expected that he will get 108 seats, but they have won. My best wishes to them. Well, why did TMC lose? I have just mentioned to you. I don't know what went wrong with the DMK and the alliance partners, and I'm sure that under leadership of Mr. Stalin, who has some wise people around him, and they will introspect and then they'll work on it. I cannot sit here and talk about it, but I am thankful to Mr. Khadar Mohyuddin Saab, who is the IUML national president, and our party had supported them in Waniambadi, and the IUML candidate had become an MLA from Waniambadi. Mr. Khadar Mohyuddin spoke to me, he thanked me that our AIMIM president, Mr. Abdul Wakil Sahab, and all the MIM members have helped them. So this is it. Sir, Avinash Pujari from IANS. My only question is, do you think Congress should have held and backed Mamata Banerjee? Congress should have? Backed Mamata Banerjee. Why are you asking me? How can I answer for a different political party? I'm not privy to what has happened. I have told you that this image of Mamata Banerjee outside of West Bengal, that she is very liberal and secular, that is completely wrong. She has exploited the Muslims as only as vote banks. She has not treated them as citizens. There are huge corruption has happened and right under her administration. And SIR also the factor. But had the TMC treated Muslims as citizens, not as a mere vote bank, there would have been much development. See, West Bengal has the 6th largest economy. And per capita income, their position is at number 25 out of 28 states. You have the highest migration of laborers from Malda, Murshidabad. This is not me. Their own government documents tell us.
and so this has been their governance style. So it is unfortunate that had she treated them justly, things would have been much different. But now we have BJP in power. People of Bengal have given power to BJP. So this has happened. Sir, India alliance, when Mamata Banerjee and Stalin was there as CM, it was quite strong. Now, what would the fate for the? I was not part of India alliance, so I cannot comment on it. सर, आखिरी सवाल। ठीक है, मैं तो इकरार किया, शुक्रिया अदा किया। हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, मगर एक बात है कि ना सिर्फ बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को बल्कि पूरे देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को ये सोचना है कि आपने वोट डालने का काम तो किया, मगर आपकी वोट की कीमत क्या है। महाराष्ट्र में यही बात आपसे कही गई थी कि सरकार में आने का है, गवर्नमेंट बनाने का है, नहीं बना सके। बिहार में यही बोला गया कि सरकार बनाने का है, नहीं बना सके। मगर सीमांचल की जनता को लाखों सलाम, उन्होंने MIM पार्टी को अपनी मोहब्बत और अपनी इज्जत और अपनी मेहनत से वहां पर अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। बंगाल में आज नहीं सरकार बनाना है, बस सरकार 15 साल सरकार है, क्या हुआ मुसलमानों को? आपने वोट दिया, तब भी बीजेपी वहां पर जीत गई। दिल्ली में ऐसे हुआ, नहीं सरकार बनाने का है, आप नहीं बना पाए, आपने वोट दिया, वहां बीजेपी की सरकार आ गई। मेरा मानना यह है कि यकीनन हमको फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस को रोकना है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं निकल सकता कि कोई मुसलमान की पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। आपकी आवाज की जरूरत है। आसाम में देखिए, आसाम में ही बोला गया 50,000 मुसलमानों को हेमंत बिस्व शर्मा की गवर्नमेंट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल तरीके से उनको बेघर कर दिया। फिर वहां पर बोला गया सरकार बनाने, क्या सरकार बनाए बताइए? अगर वही अजमल साहब के ज्यादा MLA जीतते तो आपकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस भी होती वहां पर। तो ये चीज है। रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीटों पे धांधली हुई है, तो उसमें आप क्या बोलेंगे? अब वो बताए, आप लोगों को प्रूफ करें कहां धांधली हुई, उनको वो बता सकते हैं, क्योंकि वो तो 15 साल से CM रही हैं। अब वो आप लोगों को बताए क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मेरा मानना यह है कि एक वजह SIR भी थी, मगर ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी और वो देख रही थी कि बिहार में SIR का क्या हुआ। तो उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने जितने नाम कटे गए, उनको हेल्प क्यों नहीं किया आपने? आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, एक सिंबॉलिज्म था वो। हैदराबाद में हम लोगों ने, आप देख रहे हैं हमारे ऑफिस में कितने लोगों को हम हेल्प कर रहे हैं यहां पर। आप तो सत्ता में थे ना, आप तो कर सकते थे। आप कोर्ट को गए, ठीक है, ड्राफ्ट लिस्ट से पहले आप क्या क्या नहीं करना था, चाहिए था आपको। आज भी हम कह रहे हैं कि SIR को सिटीजनशिप से जोड़ना ये गलत है। NCR का कानून है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो मैं आपके जरिए से जहां जहां अब SIR होने वाला है वहां की आवाम से अपील करूंगा कि आप अपने मैपिंग करवाइए और सही तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स होने मत दीजिए। अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनाइए, बर्थ सर्टिफिकेट है या आपका पासपोर्ट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है। और महाराष्ट्र में और तेलंगाना में तो हमारे हेल्प डेस्क सेंटर्स चल रहे हैं और 9 तारीख के दिन औरंगाबाद में मैं खुद जा रहा हूं। वहां पर हम लोग जो एक नया सिस्टम जो क्रिएट करें उसका हम लॉन्च करेंगे ताकि वोटर्स को आसानी हो मैपिंग कराने में। उसके बाद देखिए, ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद मुश्किल हो जाता है और अंडर एस्टिमेट मत करिए। सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी सिटीजनशिप से है। तो ये चीजें हैं। और साथ ही साथ जो मौलाना हमारे बहादुरगंज के हैं, उनकी एक चलती ट्रेन में उनका जो हत्या कर दी गई है,
उस सिलसिले में भी मैंने रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को लेटर लिखा है कि वो इसका इंक्वायरी कराए, क्योंकि मौलाना ने कि ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपनी वाइफ से बात की है कि उनको लोग में ट्रेन में मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं। और बरेली पुलिस के पास भी कल मरहूम मौलाना की वाइफ गई थी, बेवा गई थी, वो वहाँ के MIM के लीडर्स के साथ। उन्होंने बाकायदा कंप्लेन भी दिया, एक FIR भी इशू हुआ। मगर हम ये डिमांड करते हैं कि रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब और रेलवे प्रोटेक्शन, रेलवे की पुलिस और बरेली की पुलिस इसको मर्डर के तौर पर देखें और जस्टिस करें। ये एक खुली मिसाल है, ये हेट क्राइम है। मौलाना का मर्डर हुआ है ट्रेन में, ये हेट क्राइम है और इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और रेलवे पुलिस और रेलवे अथॉरिटीज के पास पूरा रिकॉर्ड होगा कि उस कंपार्टमेंट में जिसमें मौलाना थे कौन कौन पैसेंजर थे उसमें, और उनको अरेस्ट करना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, सख्त से सजा होनी चाहिए और मौलाना की मौत को रायगा नहीं जाना देना चाहिए। वो उन्होंने जो हरकत की है उनको कानून के जरिए सख्त सजा मिलनी चाहिए, तभी जाकर मौलाना को और उनके मौलाना की वाइफ को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा। सर, हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा कि जब मैं माइनॉरिटीज से मिला, उनसे पूछा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, आपको डॉक्टर इंजीनियर चाहिए या मदरसे, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिप्लाई आया मुझे इंजीनियर और डॉक्टर चाहिए, तो मैंने मदरसों में ताला लगवा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा को ये समझना चाहिए कि आपने 50,000 मुसलमानों को बेघर कर दिया। उनके सर पे से आपने एक छत को छीन लिया, एक झोपड़ी को छीन लिया। वो बच्चे क्या ना मदरसे को जा पाएंगे, ना डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? आप उनको डिस्प्लेस कर दिए, आप उनको सेलेक्टिव कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज टारगेट करें। क्या बात कर रहे हैं वो, क्या बोलते हैं वो? इतना हेटरेट क्यों है उनको? जो लोग भारत के नागरिक हैं उनको आप भारत का नागरिक नहीं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि हम रात के अंधेरे में बांग्लादेश में उनको ढकेल दिए। या वो क्या भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं? वो बांग्लादेश से हम ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं और बांग्लादेश स्टेबल हो, बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हो, ये हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में चाइनीज जाकर बैठ गए, बांग्लादेश में ISI जाकर बैठ रहा है और वो नए फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं और बोले कि रात के अंधेरे में हमने 1000 लोगों को ढकेल दिया बांग्लादेश में। कैसा ढकला आपने? क्या MHA ने उसकी इजाजत दी? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में कमेटी होती है, वो कमेटी तय करती है, फिर वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाता, बताए फॉरेनर्स जजमेंट बताए। तो वो तो आर्बिट्रली माने मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी हो चुके हैं, MHA का रोल भी अदा कर रहे हैं और उससे हमारे भारत के बांग्लादेश के ताल्लुक खराब हो रहे हैं। तो ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन और हेटरेट के ऊपर ये काम कर रहे हैं वो। सर, असम, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल बीजेपी ने अपने कब्जे में ले लिया, जीत हासिल कर ली है। क्या अगले लोकसभा चुनाव में आपको लगता है इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा? अगले लोकसभा में तो 29 में है ना। पॉलिटिक्स तो एक डायनेमिक सिचुएशन डेवलप होता है, तो आप भारत की जनता पर आप ज्यादा आपका अंदाजा नहीं है। भारत की जनता बड़ी बाशऊर है और मुझे यकीन है कि 29 में जो हालात होंगे, अभी तो बहुत दिन बाकी है, समझे ना। पॉलिटिक्स में एक दिन भी बहुत दिन होता है, 24 घंटे बहुत टाइम होता है पॉलिटिक्स में। ओके, हाँ, कौन बोल रहे? हाँ, नहीं, क्या कौन पसंद कर रहे? नहीं, मेरा बोलना ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज को यकीनन फासिस्ट कम्युनल फोर्सेस को हराना चाहिए, मगर आप अपने वोट से आप तो वोट डाल रहे हैं। हरियाणा में क्या हुआ? फिर आपने वोट डाला दिल्ली में यही बोल के वोट डाला कि सरकार बनाने का है, मुसलमान साथ दो, सरकार बनती नहीं है और आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप आपकी बनती नहीं है, बीजेपी जीतती है। महाराष्ट्र में ये बोले सरकार बनाना है, साथ दीजिए, आपने वोट दिया, क्या हुआ? आपका इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं बनती है। फिर बिहार में ये यही बोला गया, मगर बिहार की सीमांचल की जनता को सलाम, उन्होंने बड़ी
हिकमत से, बड़ी बहादुरी से MIM के 5 MLA को कामयाब के लीडरशिप बना दी। ये सब, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल से, आप जाकर देखो मुस्लिम इलाकों में क्या हाल है, वहां पर क्या आपने इंसाफ किया उन लोगों के साथ। गुर्बत उनका मुकद्दर बना के रख दिया आप। और फिर मालदा मुर्शिदाबाद में लाखों में वहां पे मुसलमान माइग्रेशन करते हैं एज ए लेबर के तौर पर। फिर वही बोला गया नहीं नहीं नहीं, सत्ता बनाना है, पार्टी क्या क्या बनाए, बीजेपी जीत गई। बंगाल में पूरे इंडिया में एक ही प्रदेश है जहां पर 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, कोई स्टेट में नहीं है। 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में है, और 20 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां मुसलमान 30 to 40% है, तब भी बीजेपी जीत रही वहां पर। लोग मुझ पे बहुत उंगलियां उठाते, आजकल बहुत से लोग हो गए जो खाली घर में बैठ के एक आर्टिकल लिखते, 1 मिनट का 2 मिनट यूट्यूब बनाते, जमीन पे नहीं जाते ये लोग। और यही लोग दुश्मन है मुसलमानों के, जो ये नहीं देख रहे इन चीजों को, जो ये समझते नहीं मुस्लिम लीडरशिप को खाली वोट। अरे वोट डालने वाले कब तक बनेंगे मुसलमान? सिटीजन विद राइट्स नहीं बनेंगे। बताइए, आज आप दारुसलाम में बैठे, यहां पर 1000 लोग बैठे हुए, 1 महीने से SIR का काम चल रहा है। बंगाल में क्या TMC ने क्या काम, ये कोर्ट को गए, अरे आप करना था। महाराष्ट्र में जाइए, औरंगाबाद में देखिए, मैं 9 तारीख को जा रहा हूं, वहां पे काम चल रहा है। 60 मुस्लिम मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, एडिशनल और एक 2022 है जहां पर 30 to 40% मुसलमान है। क्या हो रहा भाई? फिर इतना सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स खराब क्यों है वहां पर? 15 साल से तो सरकार है ना, क्या किया आपने? नहीं, सत्ता में आना है, सत्ता में आना तो आपका क्या फायदा हो रहा है? आपका फायदा हो रहा है, मुसलमान का क्या हो रहा है? आप तो वोटर कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको? पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख OBC सर्टिफिकेट कैंसिल किया, उसमें 3 लाख तो मुसलमान के कास्ट सर्टिफिकेट थे। वो लॉस नहीं है मुसलमानों को। तो ये चीजों को देखना पड़ेगा। यकीनन मेरी बातों से बहुत से लोग मुत्तफिक नहीं होंगे, और वही लोग चौधरी बनकर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, आपकी आवाज होगी, आपके लिए लड़ने वाला होगा, आपके आंसू को कोई समझने वाला होगा, आपके ख्वाबों को पूरा करने वाला। आप तो सिर्फ वोट डाल के बैठ जा रहे। ममता बनर्जी ने एक बार सही कहा, तुम सो दूधल गाय है, मैंने दूध देने वाली गाय, यही हाल हो गया। SIR के बारे में भी लोग ये बोल रहे हैं कि SIR होने के बाद SIR को फिर CAA NRC से जोड़ा जाएगा नेशनलिटी। अभी तो ये सिटीजनशिप का टेस्ट हो गया जो नहीं है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि SIR को आप सिटीजनशिप से जोड़कर ये गलत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तय करती सिटीजनशिप को, उसके NPR NRC के रूल्स भी हैं, मगर इसको आप जोड़ रहे। तो इसीलिए इस SIR में सबकी तवज्जो बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वोट डालने का मसला नहीं है, ये आपकी सिटीजनशिप को बरकरार रखने का मसला है। और हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट भी इसको सीरियस लेंगी। ममता बनर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी SIR हुआ, समझे, स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी में भी SIR हुआ, और क्या हुआ? दोनों हार गए। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट को, अब यहां की स्टेट गवर्नमेंट भी देख ले उस चीजों को। राहुल गांधी का अभी भी ट्वीट आया था, आसाम और बंगाल इलेक्शन को बीजेपी ने इसी की मदद से चुरा लिया। अब उनके उस पर मैं कैसे, मैं इतना तो बोलूंगा कि अगर आसाम में अजमल साहब के और मेरे ख्याल से आराम से 6 से 7 MLA जीत सकते थे, मगर वही पुरानी बात सरकार बनाने का। अबे सरकार नहीं बना सकते भाई तुम लोग, तुम मासूम मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, सिर्फ वोट हासिल कर रहे हो। नुकसान किसको होगा आसाम में? अब 50,000 तो निकाल दिए, बेघर हो गए। अगर AIUDF के ज्यादा MLAs जीतते, आपकी ताकत दिखती थी ना वहां पर। देखिए, मरने के बाद मेरी खबर पे आके फूल चढ़ाना मेरे से मोहब्बत नहीं है, मुझे बचाना मेरी मोहब्बत की निशानी है। मेरे मरने के बाद खबर पे आके फूल चढ़ा रहे हो, बड़ा हमदर्द नहीं भाई, मुझे जिंदा रखो आप। और जिंदा रहने के लिए
आपको अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और वॉइस की जरूरत है, आपकी लीडरशिप की जरूरत है जो आपकी होनी चाहिए। आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए। नहीं नहीं, अरे कितने बार हराएंगे? पंडित नेहरू के जमाने से लेके अब तक मुसलमान सिर्फ फिरका परस्ती के खिलाफ ही वोट दे रहा है ना। ये कम्युनिटी को आपने क्या डेवलपमेंट किया बताओ मेरे को। आप लोगों को मालूम कि बंगाल में पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे 1962 दिसंबर में श्रीनगर में हजरत बल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक चोरी हो गया, पूरे मुल्क में राइट्स हुआ। 63 जनवरी में 8 लाख मौजूदा बंगाल के मुसलमानों को उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया। हमारी पार्टी का ये मानना है कि यकीनन आप कम्युनल फोर्सेस को हराइए, मगर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए ताकि आपकी इनजस्टिस के खिलाफ, आपकी आवाज के खिलाफ कोई लड़ सके। आप दूसरों को वोट डाल रहे हैं, फायदा क्या हो रहा है? आपको खाली वोटर बन रहे हैं। आप सिटीजन बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए, शहरी बनिए, लीडर बनिए, नेता बनिए, अपने मुकद्दर के फैसले करिए। ये समझने की जरूरत है। अरे आन दो, तेलंगाना में आना दे, प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आ रहे। हम उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे हैदराबाद को वो मेट्रो के पैसे देंगे, जरा मेट्रो के फेज 2 के, उसको जरा पैसे देना चाहिए ना भाई, जरा दे, मेट्रो को दे दे आप। थोड़ा हमारा वो जो प्रोजेक्ट्स है उसमें थोड़ा पैसे दीजिए आप। अब जाहिर है अब मेरे बोलने के बाद हम इतना दिए तुम एहसान नहीं कर रहे, इतना दिए एहसान नहीं कर रहे। तेलंगाना का पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आप यहां पर भी आप इंसाफ करिए तेलंगाना से। तेलंगाना में सेंसस स्टार्ट हो, हाँ सेंसस है, अभी तो अब हाउस होल्ड सर्वे हो रहा सितंबर तक, फिर उसके बाद उसका दूसरा अलग सर्वे होगा, तो उसमें हिस्सा लेना चाहिए सब। थैंक यू। चलिए।